Having said that, white collar crimes are 10 times bigger than the normal crimes. A typical organization loses 5% of their revenue every year due to fraud. Names such as Enron, WorldCom, Satyam, Sahara, Tyco has established as the biggest crime at all the times in the history of the world, where the regulator to shift their attention from the normal traditional auditing technique to the investigation based technique. And this has given rise to the concept of forensic audit. There are certain problems and challenges where statutory audit, internal audit, concurrent audit, or any other audit does not give the desired result. Of course, there are certain limitations to it. Okay, and for that reason, people like me have a job. Hello, everybody. Myself, Rohan Pandya. I am working with Grant Thornton. I am having experience of working for more than 30 to 35 investigations so far, and that are into different sectors like manufacturing, infrastructure, real estate, and service sectors, finance, etc. I have also experience of working with regulatory agencies such as RBI, Enforcement Directorate, or SFIO, that is Serious Fraud Investigation Office. I was also one of the paper presenter of the National Conference for CA Student, which is held across the country. I have present I have presented many times my paper on the topic forensic audit at the different part of the country. Yeah, that's a brief introduction about me. People often ask me, what do you do exactly in the forensic audit? As I have mentioned you in my previous two videos, the definition of forensic audit, which says that forensic audit is in-depth and detailed examination of financial record and transaction of the entity and collection of the evidences that is used in the court of law. Okay, so suppose client has appointed us to investigate the fraud. Now what client expects from us, that when the fraud was happened, how it was happened, who all are involved, what was the amount involved, and how and what are the measures we can implement so that it can be then the organization can be prevented from the future frauds. Yes, we to cater the client expectation and to investigate the merit in the whistleblower complaints or any other allegations. We have certain procedures to it, such as detailed understanding of the process and identification of the fraud risk areas. Second is data analysis and finding the outliers. Third is our documentation review, and we call it as a transaction testing procedures. Fourth is our digital evidence recovery, where we often investigate the user files, word file, ppt, or any other files which are available in the suspect's laptop, desktop, or macbook or mobile phone, whatever. We also check email conversation of that suspect. We also check that WhatsApp chat. So that is called digital evidence recovery. Then we have our market intelligence procedures. We have our business intelligence procedures as well. And whatever the procedure which I have mentioned here are not applied to every investigation, but mainly these are the procedures. It may happen in particular allegations or particular fraud, only 2 or 3 procedures may apply. So this is dependent upon case to case basis. I have made one presentation where we will understand the various schemes of the financial statement fraud and various case studies too. So let's move to our presentation. So welcome to our presentation. So I have made this presentation of schemes of financial statement fraud, and before going to that, I have put it some case study, real life case study. Then we will move to our schemes of the financial statement fraud. सो यहाँ पे कुछ कंपनी का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ओके, सो ए लिमिटेड है, वो NBFC ऑफ द ग्रुप है. सो इफ़ एनी ऑफ द कंपनी इन द ग्रुप रिक्वायर्स फंड फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, then they will approach to A Limited. A Limited will grant the loan to the group companies for the various infrastructure projects. B Limited is an infrastructure company of the group. Okay, B Limited has a subsidiary, that is C Limited. C Limited is a road infrastructure company. Okay, and D Limited is a SPV of C Limited, that is for road infrastructure project. Okay, supposedly गुजरात में अगर कोई रोड बन रहा है 100 किलोमीटर्स का, so they will inflate one company, incorporate one company for that one particular projects. Okay, that is called SPV. So again I am explaining the transaction structure of the company. A Limited is a NBFC of the group. B Limited is an infrastructure company of the group.
C Limited is a road infrastructure company of the group, and D Limited is a SPV of that road infrastructure company. Okay, so C Limited is a subsidiary of B Limited and D Limited is a subsidiary of C Limited. That is the structure of the company. Now A Limited had granted loan of 185 crore to B Limited at one point of time. Okay, now B Limited has somehow siphoned off the money, and B Limited was in a need of fund and was facing some financial challenges. So now 90 days is approaching. Okay, बट बी लिमिटेड के पास पैसा नहीं है देने को ए लिमिटेड के पास. अब क्या होगा, अगर 90 डेज क्रॉस हो जाए तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा, मार्केट में इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाएगी, देन शेयर प्राइस जो भी चल रहा है बी लिमिटेड का वो पूरा डाउन हो जाएगा, बिकॉज डिफ़ॉल्ट इज़ अ वेरी सीरियस वायोलेशन. नाउ आई वॉन्ट, अच्छा अभी क्या होता है कि जो रिस्क कॉन्सेंट्रेशन लिमिट होता है क्राइटेरिया बैंक का, तो वो क्या करते हैं 20% ऑफ द ग्रुप एक्सपोजर, उससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते किसी को भी, कोई भी कंपनी. मान लो कोई बैंक है, ठीक है, तो मान लो बैंक को 100 करोड़ का डिपॉजिट आया है, और अगर 100 करोड़ का उन्होंने डिपॉजिट एक ही कंपनी को दे दिया, एक ही ग्रुप को दे दिया, और अगर वो ग्रुप डिफ़ॉल्ट मार दिया, देन बैंक पूरा डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, वो बैंक पूरा डूब जाएगा. ऐसे अपना पीएमसी बैंक में ही हुआ था. पीएमसी बैंक में भी डिपॉजिटर्स का पैसा आया, देन एचडीएल करके जो कंपनी थी उनको ही लोन दे के रखा, एचडीएल ने डिफ़ॉल्ट मारा तो पीएमसी ने भी डिफ़ॉल्ट मार दिया. तो इनलिए उन्होंने 20% का एक ग्रुप एक्सपोजर है कि अगर 20% से ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते. अगर 100 रुपये का डिपॉजिट है तो 20% आप ग्रुप ए को दे सकते हैं, नॉट अ कंपनी, एंटायर ग्रुप. ओके, सो इन्होंने 185 करोड़ का लोन दे के वो 20% का कोटा था वो एग्जॉस्ट कर लिया था. ओके, नाउ बी लिमिटेड के पास पैसा नहीं है देने को, सी लिमिटेड के पास पैसा नहीं है, डी लिमिटेड के पास पैसा नहीं है. नाउ बी लिमिटेड को पैसा तो देना पड़ेगा 90 डेज़ में. नाउ आई वांट यू टू पॉज फॉर अ कपल ऑफ मिनट एंड थिंक कि बी लिमिटेड पैसा कहाँ से लाएगा. सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड द ट्रांजेक्शंस. बट आई वांट यू टू पॉज वीडियो फॉर 1 minute एंड थिंक हाउ दे हैव मैनेज एंड हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड द ट्रांजेक्शन टू प्रिवेंट द अकाउंट बिकम एनपीए. What they have done, A Limited, C Limited has sold the investment in D Limited to A Limited. C का जो 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डी में था वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने ए को बेच दिया. इन 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 166 करोड़ में बेचा. नाउ अगर ए लिमिटेड का ऑडिटर ऑडिट करने बैठेगा, दे विल चेक भाई 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 160 करोड़ में कैसे लिया उन्होंने. दे विल रिक्वायर सम जस्टिफिकेशंस टू इट. ओके, सो अब मान लो वो मैं आपको बताता हूँ बाद में कि हाउ दे हैव इन्फ्लेटेड द वैल्यू फ्रॉम 80 करोड़ टू 160 करोड़. बट 160 करोड़ का फंड ए लिमिटेड से ट्रांसफ़र होकर सी लिमिटेड को गया. सी लिमिटेड ने लोन दिया बी लिमिटेड को ऑन द सेम डे, एंड बी लिमिटेड ने रिपे कर दिया ए लिमिटेड को 166 करोड़. सो ए लिमिटेड से पैसा निकला, रूट होकर ए लिमिटेड के पास वापस आ गया. नाउ क्या हुआ, इससे बी लिमिटेड का जो लोन एनपीए होने वाला तो भी बच गया. इन पूरा ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर वैसे किया गया. बट एक क्वेश्चन है, 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 160 करोड़ का कैसे हो सकता है. 80 करोड़ इन्वेस्टमेंट 90 करोड़ का हो, वो चलो एक बार समझ में भी आता है, ये डायरेक्ट ऑलमोस्ट डबल कैसे हो गया. तो जब हम लोग डिजिटल एविडेंस रिकवरी करते तो हमने एक चीज़ नोटिस किया कि इन्होंने क्या किया, वैल्यूअर को कुछ प्रोजेक्शन शेयर किया फॉर द वैल्यूएशन ऑफ डी लिमिटेड. तो डी लिमिटेड का प्रोजेक्शन शेयर्स किए, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से जो भी फ्यूचर 10-15 साल के जो भी कैश फ्लोस होगी उसको डिस्काउंट करके आज की प्राइस निकाली जाएगी. ओके, तो वैल्यूअर ने भी वो ड्राफ्ट रिपोर्ट शेयर करके 12 रुपीज़ का पर शेयर का वैल्यू निकाला. ठीक है, अब क्या हुआ, जो CFO था वो पर्टिकुलर जो ट्रेल चल रहा था उसमें रिप्लाई किया, वैल्यूएशन टू बी टेकन एज पर आवर सेटिस्फेक्शन. दैट हिंट वॉज गिवन बाय द CFO. नाउ व्हाट हेमर, तो कंपनी के जो अकाउंट्स वाले बंदे थे उन्होंने क्या किया, वो जो प्रोजेक्शन शेयर किए थे ना वो वापस उनको रिवाइज करके शेयर किए. रिवाइज करने के बाद मतलब जो प्रोजेक्शन थे वो इन्फ्लेट कर दिए उन्होंने. वो रिवाइज जो प्रोजेक्शन थे वो वैल्यूअर के साथ शेयर किए गए. वैल्यूअर ने वो जो रिवाइज प्रोजेक्शन थे उसके बेसिस पे फाइनल रिपोर्ट दिया. तो जो शेयर का प्राइस जो 12 रुपीज़ था वो 23 रुपीज़ का हो गया. अभी वैल्यूअर का रिपोर्ट है 23 रुपीज़ पर शेयर, मल्टीप्लाई करोगे तो 160 का आता है. तो ये जस्टिफाइड भी कर दिया उन्होंने. सो दिस इज़ हाउ दिस होल ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली वर डन. तो इसमें सब अपना बी लिमिटेड भी एनपीए से बच गया, सी लिमिटेड को भी प्रॉफिट में दिखा दिया क्योंकि 80 - 166 जो डिफरेंस आएगा तो भी सी लिमिटेड का प्रॉफिट दिखेगा, तो सी का भी बुक्स अच्छा हो गया. सो दिस इज़ हाउ दिस होल ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर वॉज डन. Second case study is about manipulation of equity to show
बेटर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है कि मान लो अगर बैंक ने जो भी लोन दे के रखा है किसी को भी, अगर मान लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 13 है, 13%, व्हाट डज दैट इंडिकेट कि मान लो कल उठ के जो भी लोन दिया है वो डिफ़ॉल्ट मारते हैं, तो बैंक के पास कितना रुपीस बचा है डिपॉजिटर्स को देने के लिए। मान लो 13% इज़ माई CAR, तो अगर 100 रुपये का लोन है, 100 रुपये का डिपॉजिट है, 100 रुपये का लोन दिया हुआ है, अगर 100 रुपये डिफ़ॉल्ट मारता है तो बैंक के खुद के पास 13 रुपये तो है जो उनको देना, डिपॉजिटर को दे पाएंगे वो लोग, इक्विटी एंड रिजर्व्स का पैसा है, ठीक है। सो अच्छा, बैंक RBI का क्राइटेरिया भी है कि आपका सर्टेन रेशियो होना ही चाहिए, उससे नीचे गया है तो आपकी बैंक बचा देंगे हम लोग, ठीक है। सो ये बहुत क्रिटिकल रेशियो है। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसा है, टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट। ओके, रिस्क वेटेड एसेट इन द सेंस कि लोन दिया है उस पर एक रिस्क का वेट लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि डिबेंचर में $9,000 का है, उसमें 90% का वेटेज है, ठीक है। तो ऐसा अज्यूम्ड है कि 90% में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, 10% ही आपका पैसा वापस आएगा, ठीक है। जैसे मॉर्गेज में $45,000 का है, उसमें अब ऐसा है कि 75,000 पैसा डूब जाएगा। तो ऐसा वेटेड एवरेज असेट्स निकाला जाता है, वो नीचे रख के ऊपर Tier 1 प्लस Tier 2 कैपिटल। Tier 1 में आपका इक्विटी आएगा, Tier 2 में आपके रिजर्व्स आएंगे, ठीक है। ऐसे करके एक रेशियो निकालना है। नाउ अगर मुझे ये रेशियो को इन्फ्लेट करना है, ठीक है, मुझे डेलिबरेटली, क्योंकि मेरा रेशियो अगर मैंने ज़्यादा अगर लोन दे के रखा है अगर, ठीक है, जो NPA हो चुके हैं या तो कुछ बैड कस्टमर्स को दे के रखा है, तो ऑब्वियसली मेरा रिस्क वेटेड एसेट तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो अभी मुझे ये चीज़ को छुपाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे छुपाना है तो करना पड़ेगा, मुझे कैपिटल लाना पड़ेगा। तो अगर मैं कैपिटल लेके आता हूँ तो मेरा सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर कैपिटल नहीं लेके आना तो भी क्या करेंगे, ठीक है। सो एक बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक था, और ये कोऑपरेटिव बैंक में ही हो सकता है और कहीं पे नहीं हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक का जो फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया हम लोग को। सो व्हाट वी हैव नोटिस कि इनका जो शेयर कैपिटल था ना 1920 का, तो इक्विटी ओपनिंग था 230 करोड़, ड्यूरिंग दैट 60 करोड़ के शेयर्स एडिशन हुए, 10 करोड़ के शेयर रिफंड हो गए, एंड क्लोजिंग था 31 मार्च 2020 को 280 करोड़, ठीक है। ये उनका ये था। नाउ हमने जो डेटा एनालिसिस किया शेयर एडिशन का जो 60 करोड़ का, तो पूरे साल में 60 करोड़ था। हमने नोटिस किया कि खाली मार्च 2020 में फॉर पर्टिकुलर मंथ कितना हुआ, देन वी हैव नोटिस द 60 करोड़ में से 45 करोड़ तो खाली मार्च में हुआ है। और आगे डीप एनालिसिस किया तो पता चला 45 में से 42 करोड़ तो 22 मार्च से 31 मार्च 2020 के बीच में हुआ। आपको याद होगा 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अपना लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है। सो हाउ इट वॉज पॉसिबल कि 42 करोड़ के शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए, और एक कोऑपरेटिव बैंक से लिस्टेड तो है नहीं कि चलो घर बैठे बैठे हो गया, ये आपको बैंक में प्रॉपरली जाना होता है और फिर करना पड़ता है। बट आपने देखा फर्स्ट लॉकडाउन ही ये डेट्स के बीच में लगा था। तो हाउ पीपल वेंट टू द बैंक, डिपॉजिटेड द मनी फॉर द सेल्फ सब्सक्रिप्शन, और बैंक के पास 42 करोड़ का फंड आया। एंड फर्दर नोट एनालिसिस में पता चला कि बैंक का जो CAR था ना कैपिटल, वो 13.13 था, मतलब 13 का एक्चुअल रिक्वायरमेंट था, और जस्ट उससे थोड़ा ही ज़्यादा उन्होंने रखा था। और ये जो भी मार्च मंथ में कैश, ये जो 45 करोड़ था ना, उसमें मेजोरिटी सब कैश में था, ठीक है। एंड जो 67 ट्रांजेक्शन्स जो ये 42 करोड़ का जो था ना 22 मार्च से 31 मार्च के बीच में, तो वो क्या था कि सिमिलर अमाउंट, मतलब 210 ऐसा डिफरेंट मार्च, मतलब भोपाल ब्रांच है, कश्मीर ब्रांच है, सूरत ब्रांच है, सब जगह सिमिलर अमाउंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किया सेम अमाउंट का, और उस सबके कोई कमेटी अप्रूवल नहीं थे। सो ऐसे करके उन्होंने पूरा मैनिपुलेट किया इक्विटी को टू शो द बेटर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड आवर मेन सेक्शन, दैट इज वेरियस स्कीम्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स। नाउ as you have experienced that financial statement बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उनसे बनता है। तो अगर मुझे फिनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कुछ फ्रॉड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना असेट साइड बढ़ा दूंगा, मेरा रेवेन्यू बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। मेरी लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस को मैं अंडरस्टैंड करूँगा टू शो द बेटर पिक्चर, ठीक है। कैसे होता है ये, इससे क्या होता है, तो अगर मेरा इक्विटी असेट मेरा बढ़ गया और रेवेन्यू बढ़ता है, उसमें मतलब मेरी इक्विटी बढ़ती है, इक्विटी बढ़ने से मेरा नेटवर्थ बढ़ता है, नेटवर्थ बढ़ेगा तो मैंने अर्निंग पर शेयर बनता है, और ये एक फेवरेबल फिनेंशियल कंडीशन बैंक या तो स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट की जाती है।
सो ये जो असेट है, मैंने लाइबिलिटी बोला, एक्सपेंस बोला और इनकम बोला, ये सबको मैनिपुलेट करके, जिसको हम लोग विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, वैसा करके वो बेटर प्रोजेक्शन कर सकते हैं. सो what I have covered, types of financial statement scheme I have covered. So inflating the revenue, improper asset valuation, improper capitalization of expenses or deferment of impairment, concealment of the liability means liability को छुपाना, expenses को छुपाना, disclosure proper ना करना, and other schemes of the financial statement first I have covered in this particular presentation. So let us start with our improper asset valuation. What refers to improper asset valuation? Means manipulation in the company's asset, value of the company's asset to strengthen the company's balance sheet and financial ratio. Okay, so in this particular asset valuation I have covered inventory as well as fixed asset. Okay, what all the modus operandi for the inventory or asset misappropriation or asset valuation. Okay, so as you know that as per the accounting standard, your inventory has to be valued at cost or NRV whichever is less. बट ये लोग क्या करते हैं, डेलिबरेटली अपना NRV को ऊपर ही रखते हैं कॉस्ट से टू तो वैल्यूएशन. अब मान लो कि आपका कॉस्ट है 10 रुपया एंड NRV 8 रुपया है. ओके, सो यू हैव टू वैल्यू योर इन्वेंटरी एट 8 रुपीज़. बट ये लोग क्या करते हैं, NRV को डेलिबरेटली 10 से ऊपर रखेंगे तो इन्वेंटरी वो करने के लिए. मिस मैच इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद रेवेन्यू. फिजिकल इन्वेंटरी अकाउंट को मैनिपुलेट करते हैं. मान लो कि देयर आर 100 करोड़ का स्टॉक है यहाँ पे, बट 20 करोड़ का स्टॉक तो उन्होंने साइफन अप कर दिया. बट इन्वेंटरी जो काउंट करेंगे उसमें तो दिखाएंगे हाँ ये स्टॉक था. इन्वेंटरी है या नहीं है कैसे पता चल सकता है? बुक्स में 100 करोड़ का इन्वेंटरी, उसको पता करने का क्या तरीका है? आपको जाके फिजिकली काउंट करना पड़ेगा वहाँ पे. बट काउंटिंग में भी आपका कंपनी के काउंट तो कंपनी के लोग ही करेंगे ना, जिसने वो किया. जो प्लांट हेड है, मान लो प्लांट हेड है, उनको ही ये करना है वापस काउंटिंग, तो वो तो बोलेंगे हाँ है 100 करोड़ का स्टॉक है. तो वैसे भी मैनिपुलेट हो सकता है. फिर इन्वेंटरी ट्रांजिट में ऐसा दिखाया जाता है कि 20 करोड़ का इन्वेंटरी ट्रांजिट में, बट ट्रांजिट में है ही नहीं एक्चुअली, वो खाली बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने दिखाया हुआ है. ठीक है, बिल एंड होल्ड आइटम्स रिकॉर्डेड एज अ सेल्स एंड इंक्लूड इन द इन्वेंटरी. इसके भी एक केस स्टडी आई विल एक्सप्लेन इन द डिटेल. ठीक है, सो दीज आर द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द इन्वेंटरी वैल्यूएशन. नाउ modus operandi for improper asset valuation. I have explained you inventory valuation. Now I am explaining improper asset valuation. How it does happen? Recording of fictitious assets which lead to increase in the balance sheet size and corresponding adjust in the equity component that I have explained you earlier. Okay, falsely showcase the fixed asset at the different location which actually not exist. Okay, मैंने बताया कि मेरे जम्मू कश्मीर में प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, बट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते. ओके, देन कोई आइटम मैंने लीज पे ले रखी है, बट आई एम शोइंग इट एज अ ओन असेट. जो लीज का अकाउंटिंग करना चाहिए वो नहीं करके मैं उसको खुद की असेट दिखाता हूँ. और बाई मैनिपुलेटिंग द डॉक्यूमेंट्स. इम्प्लीकेशंस क्या है उसके? एज पर द अकाउंटिंग नॉर्म्स फिक्स असेट आर टू बी रिकॉर्डेड एज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट. हाउएवर इनको डेलिबरेटली मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किए जा रहे हो, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बोलता है कि आपको कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है. ओके, देन टू इन्फ्लेट द वैल्यू ऑफ द यूजिंग इम्प्रॉपर असेट वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द थर्ड पार्टीज. मान लो मुझे किसी का वैल्यूएशन करवाना है, ठीक है, तो मैं वैल्यूअर को हायर करूँगा. तो वैल्यूअर को तो मैंने पैसा दिया, उन्होंने मेरी वैल्यू ज़्यादा कर दी. ओके, सो ये है. फिर मैं आई विल बैकडेट द डॉक्यूमेंट. मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है, मान लो आज इन्वेस्ट करके रखा है, आज शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है, बट पास में पता चला कि वो शेयर का प्राइस एक्चुअली 150 था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैं क्या करूँगा, जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसको फॉल्सिफाई और बैकडेटेड बनाऊँगा, ताकि ऐसा पता चले कि मैंने आज शेयर परचेस नहीं किया, मैंने पहले ही परचेस किए थे. तो पहले परचेस मैंने 150 का प्राइस दिखाऊंगा, तो 140 में मेरा परचेस है, तो मेरा बैलेंस शीट का इन्वेस्टमेंट का साइज भी बढ़ जाएगा, 150 से रिकॉर्ड होगा अभी. तो ये भी एक स्कीम्स है. देन मैंने जो केस स्टडीज़ लिए उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ माइनर जीपीएस वर्क, इंटरेस्ट इंकर्ड फॉर द लोन यूटिलाइज फॉर वर्किंग कैपिटल जनरल पर्पज, उसको कैपिटलाइज किया गया है. एंड कंसल्टेंसी फीस जो प्रोजेक्ट पर्पज़ के लिए नहीं थी फिर भी उसको कैपिटलाइज किया जा गया है, तो उसकी केस स्टडी है वो कवर्ड हियर. आदर्श लिमिटेड was engaged in the business of textile export. Company was having aggregate annual turnover around 1,300 crores in the year 2016. Company was having bill and hold arrangement with the customer. Portion of bill and hold was around 650 crores. Which is almost 50% of the sales. मतलब मेजर ऑफ द जो सेल्स होता है बिल एंड होल्ड. अच्छा, बिल एंड होल्ड क्या होता है कि मान लो ए लिमिटेड ने कुछ सेल किया बी लिमिटेड को. ना बी लिमिटेड के गोडाउन में रखने की जगह नहीं है, ठीक है, तो उसने क्या बिल कर दो, आप होल्ड मत करो, बिल कर दो, बट आपके यहाँ पे भी रख दो.
ठीक है, आपके यहाँ पे भी सेपरेटली रख दो, हम लोग जब भी आएगा हम लोग लेके जाएंगे बाद में, ठीक है। तो ये लोग जो एज पर इंडेज क्या कहता है कि अगर जो भी ऐसा कुछ गुड्स है ना बिल्ड एंड होल्ड वाला, उसको आपको सेपरेटली रखना है, जो बाकी इन्वेंटरी से अलग हो, सेपरेट डिमार्केशन आपको रखना है। बट ये लोग क्या करते हैं, जो ये पर्टिकुलर आदेश लिमिट में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि कुछ इन्वेंटरी उन्होंने पहले साइफन ऑफ कर दी थी, तो कुछ शॉर्टेजेस आ रहे थे वहाँ पे, ठीक है। अगर 31 मार्च को अगर स्टेट्यूटरी ऑडिटर स्टॉक काउंट लेने जाएगा तो शॉर्टेज आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, बिल एंड होल्ड ट्रांजेक्शन्स के जो इन्वेंटरीज थे ना, उसको मेन स्टॉक में इंक्लूड कर देते थे। तो 31 मार्च को जब स्टेट्यूटरी ऑडिटर आता था, वो देख रहा था हाँ भाई 100 करोड़ का स्टॉक है, यहाँ पे भी 100 करोड़ से, जैसे ऑडिट हो गया उसको साइड पर रख दिया। सो ऐसे कर करके एवरी क्वार्टर दे यूज टू इन्फ्लेट इन्वेंटरी ऑफ 400 करोड़ एवरी क्वार्टर। सो बिकॉज ऑफ इट आपका रेवेन्यू भी इन्फ्लेट हो गया, आपकी इन्वेंटरी भी इन्फ्लेट हो गई। सेकंड केस स्टडी, ABC Limited was engaged in the business of manufacturing of dairy product. Company was granted term loan of 460 crore to set up a plant in Nanded that is in Maharashtra. Physical verification of the site had noted that assets were not constructed or not significant development in the asset. Special audit was carried out and which was appointed by the bank itself, because bank has granted loan of 460 crores to to build a new plant in Nanded. Okay, and the special audit was carried out. So what we have noticed that company has awarded contract to XYZ Limited for set up the dairy plant in Fort. ये टर्न की प्रोजेक्ट पे उन्होंने 400 करोड़ दे दिए, ठीक है, और 360 करोड़ 3 ट्रांजेस में उनको दे दिया। अच्छा, अभी XYZ ने क्या किया, वही सब काम दूसरी पार्टीज़ को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो बाकी जो काम कंपनीज को सब कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उनके इन्वॉइसेस, उनके डॉक्यूमेंटेशन हमने मंगवाए, ठीक है। तो क्या हुआ था, इनके जो इन्वॉइसेस थे ना, वो इन्वॉइसेस खाली थे, उनके साथ ना तो कोई वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ना तो कोई रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट, कुछ भी नहीं था। पेमेंट खाली बेसिस ऑफ द इन्वॉइसेस हुआ। काफ़ी लोग अगर कंस्ट्रक्शन का उन्होंने किया होगा तो पता होगा कि RA बिल्स, रनिंग बिल्स वगैरह कुछ ना कुछ तो होता है, तो सर्टिफाइड कि कहीं काम हुआ है, ठीक। इन्वॉइस के बेसिस वी कैन नोट से कि काम हुआ है, ठीक है, और ऑडिटर को भी दिखना चाहिए सब, ठीक है। दैन हमने इन्वॉइसेस देखा, तो इन्वॉइसेस सारी सीक्वेंस में नंबर है, ठीक है। तो मतलब ऐसा इतना पता था कि ये जो कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो खाली अपने लिए ही काम करते थे। थर्ड थिंग पता चला कि इनका कोई टेंडरिंग, बिडिंग कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट एक नॉमिनेशन के बेसिस पे हुआ, ठीक है। हमने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मांगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स दे दो। क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट्स देखा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे एक्चुअली, इनके परचेस ऑर्डर के बेस पे काम दिया था। और जो भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसमें एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें वो सब टर्म्स होते हैं कि पेमेंट कब करना है, इसके डिज़ाइन क्या होती है, आपको कब तक काम कंप्लीट करना है, और सब कुछ भी नहीं, जस्ट परचेस ऑर्डर पे वो भी MD ने खुद ने वो कर दिया था, ठीक है। ये सब जो कंपनीज थी, पता चला कि इनके सब, अच्छा, मार्केट इंटेलिजेंस प्रोसीजर से हमने इनके बैंक स्टेटमेंट निकाला, ठीक है। तो जो 4-5 कंपनीज थी ना, उन्होंने वापस कुछ जो पैसा था वो दूसरी कंपनी को दिया, वो कंपनी के स्टेटमेंट निकाला, तो वहाँ से तीसरा, तो वैसे 4-5 लेयर के थ्रू पैसा साइफन ऑफ हो गया और काम हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो फिर ये केस, ये फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट हमने किया, इसके बाद CBI ने ये MD CA इनको भी चीटिंग के केस में डाला था अंदर। नाउ व्हाट इज़ इम्प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ऑफ द असेट। कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंस ये होता है कि अगर कोई असेट में आप एक्सपेंस इंकर करते हो, जिसकी लाइफ आपको ओवर द पीरियड ऑफ उसमें बेनिफिट मिलने वाला है आपको, और अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेक्स भी कहता है कि अगर 1 साल से ज़्यादा अगर बेनिफिट रहेगा, यू कैपिटलाइज दोज एक्सपेंस टू द कैपिटल असेट, ठीक है। इम्प्रॉपर कैपिटलाइजेशन से क्या होता है कि कंपनीज टेंड टू कैपिटलाइज सर्टेन एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू अवॉइड रिकॉग्निशन इन द सेम पीरियड इन विच फाइनेंस स्टेटमेंट परटेन्स। अगर मान लो मैंने 50 करोड़ का कोई एक्सपेंस इनकर किया फॉर पर्टिकुलर असेट, वो है रेवेन्यू का नेचर, उससे कोई लाइफ तो बढ़ नहीं रही है, ठीक है, जैसे सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, ठीक है। बट मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि ये मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अर्न किया, जिससे मेरा असेट का लाइफ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। बट अगर मैं उसको कैपिटलाइज करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पैक्ट नहीं आएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट की साइज़ बढ़ जाएगी। मान लो 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ का मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, जिससे मेरी लाइफ नहीं बढ़ रही, तो उसको एक्चुअली एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या तो इंडेक्स क्या करना चाहिए, मुझे उसको रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मतलब एक्सपेंस आउट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि मेरा असेट भी इन्फ्लेट नहीं होगा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी मिसरिप्रेजेंट नहीं करेगा। बट ये लोग क्या करते हैं डेलिबरेटली, ये जो पर्टिकुलर 50 करोड़ है ना, उन्होंने असेट में ऐड कर दिया अंडर द प्रीटेक्स ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक्सपेंसेस,
अब क्या होगा, उससे आपका असेट का वैल्यू भी बढ़ गया और आपका एक्सपेंस भी कम हो गया, तो आपका प्रॉफिट का पोर्शन भी बढ़ गया। इससे क्या हुआ, स्टेक होल्डर को कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ। सो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। सो एक कंपनी थी LMG लिमिटेड which was engaged in the business of hotel. The construction of the hotel began in December 2020 after receiving the necessary approvals. So construction चालू हुआ। So company had incurred direct expense like cost of material, labor cost, architect, etc. to the tune of 190 crores. Okay. Indirect expenses such as salary expenses and consultancy were incurred for 90 crores. And company has capitalized at 280 crore. 190 plus 90, 280 crore in financial year 2021. And profit recorded was 20 crore. ठीक है। एंड ये पोजीशन देके बैंक ने भी उनको लोन दिया, ठीक है। बट कंपनी हैज इंकर्ड INR 150 करोड़ टुवर्ड्स द प्री कंस्ट्रक्शन। तो एज पर मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि कॉस्ट देर आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट असेट दैट टू बी कैपिटलाइज। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो 90 करोड़ का पोर्शन था वो डायरेक्टली लिंक नहीं था इससे, बट इन्होंने क्या किया, उसको कर दिया ऐड। इससे क्या हुआ, अभी कंपनी का प्रॉफिट था वो साल में आई थिंक 70 करोड़ का प्रॉफिट था, जो साल में उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया। अगर वो 90 करोड़ का उन्होंने एक्सपेंस आउट कर दिया होता तो ये कंपनी लॉस में चली जाती। तो जानबूझ के मेरी कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए वो 90 करोड़ को कैपिटलाइज कर दिया और कंपनी का 70 करोड़ में, अगर वो 90 करोड़ को मैं अगर डालूँ एक्सपेंस हो तो 20 करोड़ का ये होता है। तो ऐसे करके उन्होंने मिसरिप्रेजेंट किया था। अच्छा, इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट इन द सेंस कि मान लो मैंने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है। अभी इम्पेयरमेंट क्या होता है कि आपको एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर या तो कोई पर्टिकुलर टाइम पे आपको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी होती है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। एक तो होता है आपका मार्क टू मार्केट करो, ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS कहता है। एक होता है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मतलब आपको वो इन्वेस्टमेंट से पोर्शन राइट ऑफ करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है, ठीक है। उसका कुछ क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि मान लो कि मैंने शेयर परचेज किया 100 रुपीज़ में ऑन 1 मार्च 2020 एंड 31 मार्च को उसका वैल्यू होगा 90, तो मैं 90 पर रिकॉर्ड करूँ, ऐसा नहीं। इफ़ देर आर एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डाउनफॉल इन माई इन्वेस्टमेंट देन द कंपनी और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन नीड टू टेस्ट द इम्पेयरमेंट एंड राइट ऑफ द पोर्शन इन द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। इन्वेस्टमेंट पोर्शन उनको प्रॉफिट एंड लॉस में करना पड़ेगा। हावेवर ये क्या होता है, कंपनीज़ की पॉलिसीज़ होती है, ठीक है, कि मान लो कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट मैंने करके रखा है तो पॉलिसी है कंपनी की, क्योंकि स्टेट्यूटरी भी पॉलिसी को ओवरराइड नहीं करेंगे। पॉलिसी में जो लिखा है उसके हिसाब से अगर इम्प्लीमेंट हुआ है दैट इज़ ओके। पॉलिसी को रेट करना ये फॉरेंसिक ऑडिटर का काम है कि पॉलिसी उन्होंने डेलिबरेटली तो ये मिसस्टेट करने के लिए तो नहीं दी ना, तो उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। क्या होता है कि पॉलिसी होती है कंपनी की कि लास्ट के 12 साल का हम लोग एवरेज निकालेंगे। अगर एवरेज प्राइस, शेयर का एवरेज प्राइस अगर जो करंट प्राइस है, करंट जो प्राइस है उससे अगर 30 या 40% डाउन है, 30% डाउन है, तो हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ये कंपनी का पॉलिसी है। तो क्या हुआ, स्टेट ऑडिटर आया करने के लिए, उसने देखा कि हाँ भाई 40% तो नहीं है, तो इम्पेयरमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, जानबूझ के पॉलिसी ऐसी बनाती है कि वो 20-30% 50% रख देती है कि अगर 50% से कम हुआ ना तो ही हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। गलत चीज़ है। 50% तो बहुत रेयर केस में होता है, बट जब मान लो अगर 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, और एवरेज निकाला आपने तो 70 रुपीज़ हो गया शेयर का प्राइस, ठीक है। तो आपकी पॉलिसी में ऐसा होना चाहिए कि 25% अगर डाउनफॉल हुआ तो आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर दोगे। पर लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं कि 50% का क्राइटेरिया उसमें डाल दिया उन्होंने अपने पॉलिसीज़ में। अब क्या होगा, जब तक 50% डाउन होगा नहीं एवरेज प्राइस, तब तक ये लोग करेंगे नहीं। 50% डाउन तो होता नहीं, कि इतना बहुत रेयर केस में होता है जब मार्केट का पूरा वाइप ऑफ हो जाए। तो ये लोग जानबूझ के ऐसी पॉलिसी बना। अच्छा, इससे होता क्या है, इम्पेयरमेंट नहीं करते लोग, डेफर करते इम्पेयरमेंट को। तो होता क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो होना चाहिए ना, कम होना चाहिए था, बट आपको ज़्यादा दिखता है। प्लस जो राइट ऑफ पोर्शन होता है आपको प्रॉफिट लॉस में डालना होता है, वो आप नहीं डालते। इससे आपका रेवेन्यू भी इन्फ्लेट होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी इन्फ्लेट होता है, ठीक है। तो ऐसे ये लोग मिसरिप्रेजेंट करते हैं। देयर इज वन कंपनी कॉल्ड AMC लिमिटेड वाज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस एंड मेट्रो लाइन। जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि लोग SPV बना के रखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 15 द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड $100 करोड़ इन MIC लिमिटेड विच वॉज इन्वॉल्व इन द सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस एज AMC लिमिटेड। इन्होंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ओके। हावेवर
till financial line okay, during the year 16 the 3 main projects of MIC Limited got terminated. कुछ गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि भाई ये रोड आप नहीं बना सकते, ये प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते, वट एवर रीज़न, ठीक है। एंड कंपनी वो सफर हैवी लॉस, ठीक है। अब क्या होना चाहिए कि ये जो कंपनी थी AMC लिमिटेड, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है MIC लिमिटेड। MIC जो प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, जिस पे बेसिस पे MIC की वैल्यू पूरी डिराइव होती है, वो प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो गए। जो 3 बड़े प्रोजेक्ट थे उनके टर्मिनेट हो गए। अब क्या होता है कि ये जो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैंने किया है वो कंपनी में, वो मुझे इम्पेयरमेंट का टेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं भी करना है तो उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट इन्होंने कोई भी ऐसा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं किया, और जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिखा के रखा है वो कंसिस्टेंटली ओवर वैल्यू दिख रहा था, ठीक है। ऐसे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ था। फिर नया मैनेजमेंट आया, नया मैनेजमेंट पूरा 100 करोड़ को राइट ऑफ कर दिया, पूरा कंपनी लॉस में चला गया था। तो ये एक केस हुआ था। व्हाट इज़ फिक्टिस, ये तो सबको पता है फिक्टिशियस रेवेन्यू क्या होता है। फिक्टिशियस रेवेन्यू मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस दैट इज नॉट एक्चुअली, मैंने सेल किया ही नहीं, बट मैंने फिक्सर ये रिकॉर्ड किया है, ठीक है। और इसको हम लोग एक केस लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं, तो आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट है। कुछ कंपनीज क्या होती है कि ये चीज़ कंपनी की पोजीशन अच्छी दिखाने के लिए फिक्टिशियस सेल्स कैसे करती है। मान लो कोई कंपनी है, उसका 5 साल का आपने सेल्स का फिगर लिया, तो पता चला आपका सेल्स का फिगर 1000 करोड़ था, 1500 करोड़ हुआ, 2000 करोड़ हुआ, 2500 करोड़, ऐसे ऐसे 50-60% से बढ़े जा रहा है। बट अगर कैश फ्लो एनालिसिस करोगे ना, कैश फ्लो एनालिसिस, उससे पता चलेगा कि वो एक्चुअली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस वो रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे। फिक्टिशियस सेल्स दिखा के अपने सेल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट डेटा से रियलाइजेशन ही नहीं आ रहा है। उसका मतलब क्या है, जो डेटर्स को सेल किया है ना, वो थोड़ा डॉजी है, उसको आपको देखना पड़ेगा डिटेल में जाके। सो ऐसे लोग फिक्टिशियस रेवेन्यू लोग बुक करते हैं, ठीक है। सो इनके मॉडल्स ऑपरेंडी क्या है, फिक्टिशियस रेवेन्यू विच लीड टू इंक्रीज इन द रेवेन्यू, वो तो सब भी ज्ञान पता ही है, ठीक है। कंपनी आर वॉज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ द प्रिंटिंग मशीनरी, इट रिक्वायर्स लोन फ्रॉम द बैंक टू द बिजनेस एंड दे इन्फ्लेट द रेवेन्यू एंड ऑल दैट। सो दैट इज द थिंग। Nakshatra Limited was in the business of manufacturing of diamond, which was located in Mumbai and having manufacturing unit at Surat. So once diamond are ready, are exported from Mumbai. So diamonds are manufactured in Surat. So it came to Mumbai and Mumbai से वो लोग export कर देंगे यहाँ पे. In the year 2010, the company has availed banking facility of packing credit, that is pre-shipment finance of 150 crores and bill discount, that is post-shipment finance of 150 crores. As the company was unable to pay its debt obligation to the bank, and the account became NPA and forensic auditor was appointed. On investigation, it was revealed that sir, first of all, to take the packing credit, your purchase order has to be received from the overseas buyer. You are making sales, so you must have received purchase order from the overseas buyer. So what we have noticed, that the purchase order was appears to be signed by a सिंगल पर्सन बट डिफरेंट सिग्नेचर। मीन्स रोहन का अगर सिग्नेचर है तो 5 परचेस ऑर्डर पे रोहन का डिफरेंट सिग्नेचर्स है। हाउ इट वॉज पॉसिबल? सो विथ देन बेस्ड ऑन द डिफरेंट एविडेंसेस वी कम टू द कंक्लूजन दैट परचेस एंड देयर वाज नो एविडेंस ऑफ परचेस ऑर्डर बीइंग रिसीव फ्रॉम द ओवरसीज पार्टी। मतलब आया होगा, ईमेल होगा या कुछ ना कुछ तरीके से तो आया होगा परचेस ऑर्डर, बट परचेस ऑर्डर वो बाहर से आया नहीं था, वो यहाँ से ही बनाया हुआ था टू डिफ्रॉड द बैंक, ठीक है। देन वो जो कंपनी था जिसमें वो कंपनी का नाम लिखा था, वो जो ये लोग ब्लैक लिस्ट निकाल ECGC जब एक्सपोर्ट करना होता है ना, आपको ECGC का क्लेम लेना होता है, ECGC का इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो ECGC है ना, वो ब्लैक लिस्ट करते रहती है। अगर मान लो किसी ने एक्सपोर्ट किया, वो एक्सपोर्टर ने पैसा मार लिया अपना, तो उसके लिए भी कुछ तो होना चाहिए ना, प्रिवेंटिव मेजर्स। तो ये लोग ECGC अपनी एक लिस्ट बनाती है, ठीक है, कि ये 10 डॉजी वेंडर्स है, उनको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बट वो जो वेंडर था, जो ओवरसीज बायर था, वो वहाँ पे कंटिन्यूसली 2014 में अपीयर हो रहा था, फिर भी बैंक ने वो इग्नोर करके उन्होंने किया। Then on the fund trail analysis, it was noted that amount of packing was transferred to the bogus vendors of the company, which was not carrying out the business. तो मतलब पैसा अगर बैंक ने दिया बेस्ड ऑन द परचेस ऑर्डर, 100 करोड़ का कंसर्न में मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो बैंक ने मुझे 80 करोड़ का लोन दिया। 80 करोड़ का लोन है, मैंने यहाँ पे लोकल वेंडर्स को साइफन ऑफ कर दिया एंड अकाउंट NPA हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे inflated the revenue and siphon of the money. नाउ प्री बुकिंग ऑफ रेवेन्यू। प्री बुकिंग ऑफ रेवेन्यू क्या होता है कि मान लो कोई एडवांस में पैसा आया, तो मतलब वो जो रिकग्निशन हो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में होना चाहिए। बट क्या होता है, मैं डेलिबरेटली उसको ऐसा ट्रीट करता हूँ कि करंट ईयर की ही इनकम है। ये कभी होता है परसेंटेज का कैलकुलेशन में भी ये लोग करते हैं। मतलब मान लो कि
टिल 31 मार्च 2023 आपका अगर 30% ही काम हुआ है, बट यू आर शोइंग इट एज कि 40-50% काम हो गया है, क्योंकि रेवेन्यू तो परसेंटेज कंप्लीशन पे भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो वो उसको डेलिबरेटली मिस्टेक करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड अवर प्री बुकिंग ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। सो वन ऑफ द कंपनी विच इज़ कॉल्ड सनशाइन लिमिटेड भी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ होटल चेन, जो हिमाचल प्रदेश में उसका बिजनेस था पूरा, ठीक है। सो कंपनी को लोन लेना था, तो उनको फिनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे दिखाने थे। सो वो क्या करते थे कि जो अभी इनको क्या एडवांस में मनी आता है, क्योंकि ये होटल का बिजनेस है, उनको एडवांस में मनी आता है कि चलो मान लो मार्च में किसी ने बुकिंग करवाया कि भाई अप्रैल में हम लोग आने वाले हैं, तो एज़ पर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडस्ट्री आपको क्या करना चाहिए, अप्रैल में बुकिंग करना चाहिए पूरा रेवेन्यू। अभी आपको पैसा है तो एडवांस रखना चाहिए। पर ये लोग क्या करते थे, उसको मार्च का ही वो लोग इनकम दिखा के वो लोग इन्फ्लेट करके लोन ले रहे थे। अभी ये चीज़ पता कब चली, जब लॉकडाउन में मार्च का महीना आया, सबने बुकिंग करवा के रखी थी, मार्च अप्रैल में लिया, रेवेन्यू तो इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया क्योंकि लॉकडाउन लगा। अब इनको तो ये पैसा वापस करना पड़ेगा। पैसा वापस किया उन्होंने तो पूरा रेवेन्यू वापस डाउनफॉल हो गया, ठीक है। वो भी 31 मार्च, ऐसा भी नहीं कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, 31 मार्च से पहले ही आपका ये रेवेन्यू डाउनफॉल हो गया। तो ये चीज़ पूरी सामने आ गई थी। नाउ नेक्स्ट मॉडस ऑपरेंडी इज कंसीलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस को कंसील करना इन द सेंस कि अंडरस्टेट करना, कि मान लो आपकी 100 रुपये की लाइबिलिटी है, आप 70 रुपीज़ ही दिखाते हो। इससे क्या होता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखती है, ठीक है। व्हाट एफर्ट्स टू कंसील लाइबिलिटी टू अंडरस्टेट द लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस मेक द कंपनी अपीयर मोर प्रॉफिटेबल देन एक्चुअली इट इज। Pre-tax income will increase and amount of unrecorded will be increased. We have covered following thing our in case study: omitting liability and expenses and failing to disclose the warranty cost or product return liabilities. Okay, modus operandi क्या है, large monetary judgment against the company एज क्या, मतलब मान लो कि कोई ने अपने पे केस ठोका था कि 100 करोड़ का अपने को देना था, ठीक है। वो अपने फेवर में नहीं आया, ठीक है, तो अपने को इसको प्रोविज़न करके रखना चाहिए, बट हम लोग जानबूझ के प्रोविज़न करके नहीं रखते हैं, ठीक है, टू इन्फ्लेट अवर बैलेंस फिगर। वेंडर इनवॉइसेस आर स्ट्रेट एंड स्ट्राइक इन द गो डाउन, मतलब जो परचेस होता है, परचेस या एक्सपेंसेस, उसको जानबूझ के हम लोग बिल को अवॉइड करते हैं या जला देते हैं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड ना करना पड़े बुक्स में, ठीक है। तो ये डेलिबरेटली होता है, ठीक है। Surya Limited was based in the Surat and was engaged in the business of textile. Company was granted a cash credit limit of 630 crores and letter of credit of 300 crores from the bank in the year 2012. It became NPA due to non-payment of debt obligations in the year 15. The bank has started proceeding under SARFAESI and forensic audit was appointed. Okay, what was happened? Company had floated 7 shell companies, fictitious purchase order, invoices utilized to avail the letter of credit 300 crore. Due to non-payment of such a creditor, shell companies letter of credit invoke हो गया। एक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट इन्वोक, मतलब क्या होता है कि अगर गारंटी दे के रखी है, ठीक है, मान लो 300 करोड़ का गारंटी किसी को दे के रखा है, अगर वो पार्टी ने पैसा नहीं दिया तो आई हैव टू पे, पर वो पार्टी डिफॉल्ट कर दी ना, आई हैव टू पे 300, तो मुझे मेरी लाइबिलिटी पहले कंटीजेंट लाइबिलिटी हो गई 300 करोड़ की, बट नाउ इट इज़ एक्चुअल लाइबिलिटी, तो मुझे 300 करोड़ को मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा मुझे फिनेंशियल स्टेटमेंट, बट ये कंपनी ने कुछ किया नहीं था वैसा। देन इन्वेस्टिगेशन में सब पता चला गया था, ये रिसीवेबल्स को वे ऑफ करना पड़ा। Adjustment to estimates, it is, let me move directly to case study. XYZ Limited was engaged in the business of construction which was based in the Mumbai. In the year 2015, company has made a huge profit and were liable to pay hefty tax liability. उनको करना था। In order to avoid payment of tax liability, the company had made huge provision in respect of account receivable, impairment of assets and provision of expenses. ठीक है, कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कर लिया, अभी उनको करना पड़ेगा। अभी मैं कैसे टैक्स को बचाना, तो कैसे मेरे को एक्सपेंसेस को ही मेरे को करना पड़ेगा। तो कंपनी ने, मैंने बोला ना कि ये लोग पॉलिसी के साथ खेलते रहते, इम्पेयरमेंट कर दिया, प्रोविज़न कर दिया, ठीक है, राइट ऑफ कर दिया कुछ डेटर्स को, ठीक है। तो वैसा करके द फॉरेंसिक ऑडिटर वाज अपॉइंटेड टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन इन रिगार्ड टू द, जो उन्होंने जेन्युइननेस था, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो ये एक्सपेंसेस मारा था, इम्पेयरमेंट, ये प्रोविजंस वगैरह, उनको जेन्युइननेस को वेरीफाई करना था। तो ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज नोटेड दैट कंपनी हैड बुक एक्सेस प्रोविजन विच वर रिवर्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी प्रोविजन करके रखा, नेक्स्ट फाइनेंशियल में रिवर्स कर दिया। कंपनी हैड रिड्यूस इट्स प्रॉफिट बाय इन्फ्लेटिंग द एस्टिमेट्स मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस। द एक्शन ऑफ कंपनी लेड टू बुकिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड फिक्टिशियस रिड्यूसिंग द प्रॉफिट, एंड इससे अपना टैक्स, क्योंकि देखो आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो आपका टैक्स कम करना पड़ेगा। तो ऐसे पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर करके रखा था। इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर्स, मतलब कि कुछ चीज़ को मुझे डिस्क्लोज करना चाहिए था, जैसे मैंने आपको बताया कुछ ऑनगोइंग लिटिगेशंस है जिससे मेरा फ्यूचर में लायबिलिटी हो सकता है, बट ये लोग जानबूझ के वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते। मान लो कुछ बहुत सारों ने कोविड-19 का डिस्क्लोजर्स नहीं दिया था, उनका रेवेन्यू इतना कम क्यों हो गया था, ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर्स है ना,
डायरेक्टली फिनेंस को इम्पेक्ट नहीं करते, बट डिस्क्लोजर्स आर द वाइटल इंफॉर्मेशन विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो ये लोग करते नहीं हैं। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट पे मैनिपुलेशन करते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट फ्रॉड है। Sun Limited was engaged in the business of providing investment service to client and was located in Kanpur. Company was collecting funds from the client and investing in the same other companies. Company was unable to pay sufficient return to the client consistently for 3 years. 3 साल तक कोई रिटर्न नहीं दिया and failed to provide details of the transaction carried out by them. Special auditor was appointed to carry out the investigative activity of the scope of the audit was include fund rail करना, इतना पैसा डाला कहाँ पे इन्होंने, and check whether the funds were invested rationally and based on the प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम। तो एज पर पॉलिसी उन्होंने इन्वेस्ट किया कि नहीं, वो उनको देखना था। कंपनी हैड मेड टू गुड टू बी ट्रू अग्रीमेंट टू अट्रैक्ट द क्लाइंट एंड ट्रस्ट देम विद देयर फंड। अच्छा, पॉन्जी स्कीम का नाम सुना होगा। पॉन्जी स्कीम क्या होता है कि मान लो मैंने एक फ़ंड खड़ा किया, ठीक है, उसमें मैंने सबको रिटर्न प्रॉमिस किया कि आपको 20% 30% ऐसा रिटर्न मिलेगा। तो मान लो इनिशियल 100 कस्टमर्स आए, ठीक है, उनको अब क्या होगा कि बाकी जो 100 कस्टमर पहले आए, बाद में वापस 100 दूसरे आए, इनसे जो पैसा आएगा ना, उससे मैं अच्छे रिटर्न इनको दूंगा पहले वाले को। तो पहले वालों को लगेंगे अच्छा है, ठीक है, अभी दूसरा लोड खड़ा है, तो तीसरे लोड से जो पैसा आएगा उससे अच्छा रिटर्न मैं दूसरे वालों को दूंगा, और इनसे जो पैसा आया वो मैं साइफन ऑफ कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड पोंजी स्कीम, ठीक है। द कंपनी दिस फंड ऑफ द कस्टमर वेर यूज बाय द कंपनी टू प्रोवाइड लोन्स टू प्रमोटर कंपनी। ये पैसा आया, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्होंने लोन दे दी, ठीक है। अब वो जो कंपनी थे उन्होंने साइफन ऑफ कर दिया, ड्यू डेट पे लोग पैसा लौटा पे नहीं आए, और ये पूरा फिएक्स को सामने आ गया था। ये अपना ये कोलकाता बेस्ड कंपनी थी ये। There are certain other type of accounting frauds which are embezzlement. There are certain purchase embezzlement means cashier, cashier यहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा करके थोड़ा निकाल के लेके जा रहा है। Then personal purchases, पर्सनल मतलब कोई डायरेक्टर का या मैनेजिंग डायरेक्टर का कुछ पर्सनल घर का खर्चा उन्होंने कंपनी में डाल दिया। Account receivable fraud take place through the schemes such as lapping, altering the account receivable to hide the stolen cash, fake suppliers को दिखा के, पेरोल फ्रॉड मतलब घोष एम्प्लॉइज़ को दिखा के पैसा बाहर निकल के लेके जा रहे हैं, अकाउंट्स पेबल फ्रॉड। सो दीज आर द सम अकाउंटिंग frauds which are happening here. So guys, I will try to cover here lots of modus operandi of and whether various schemes of financial statement fraud. I hope you like the session. Thank you so much for your active listening. Thank you.